Dear students, uh, we were discussing about the testicular dysgenesis syndrome. So, it may be of cryptorchidism, hypospadia, a low sperm count. It may cause cryptorchidism, hypospadia, low sperm count, or testicular germ cell death, and maybe cancer. So, due to certain carcinogens, male may suffer testicular diagnostic syndrome. So, if we talk about the cryptorchidism, basically it is the absence of one or both testes from the scrotum. The word is from the Greek keptro, meaning hidden, and opix or orchis, meaning testicles. It is the most common birth defect of the male genital tract. About 3% of full term and 30% of premature infant boys are born with at least one undescended testicles. However, about 80% of cryptorchidistes descended by the first year of the life, making the true incidence of the cryptorchidism uh, around 1% overall. Cryptorchidism may develop after infancy, sometime as late or young adulthood, but that is exceptional. तो इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जब बेबी बॉय की बर्थ हो तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि उस टाइम वो चेक करें कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं सम टाइम वो एब्डोमेन में रह जाते हैं और पेरेंट्स इस चीज़ को मेक श्योर करें कि उनको डाउनलोड करना होता है वो फिज़िकली उनको हॉस्पिटल में ले जाके सम टाइम ऑपरेशन होता है और सम टाइम पहले साल के अंदर अंदर अगर 1 ईयर तक एक टेस्टिकल या दोनों एब्डोमेन से डाउनलोड ना हो स्क्रोटम में तो एक तो ये देख लेना चाहिए। सम टाइम ये टेस्टिकुलर डायग्नोस्टिक सिंड्रोम नहीं भी होता तो ये एक प्रॉब्लम बच्चों में रह जाता है, अगर वो रह जाए तो बाद में वो कैंसर या किसी और चीज़ में डेवलप हो जाता है। बट जो क्रिप्टोकोडिज्म है इसके अंदर ये एक जेनेटिक रिलेटेड आपका सॉरी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि एक एबनॉर्मेलिटी है। ये सर्टन केमिकल्स की वजह से ये प्रॉब्लम बॉयज़ के अंदर आता है और बेबी बॉय के अंदर ये हमें देखना होता है, इसमें एक्यूरेसिटी की बड़ी ज़रूरत होती है। देन हाइपोसेप्डिया जो है दिस इज़ बेसिकली is a birth defect, congenital condition in which the opening of the urethra is one of the undesired of the penis instead of at the tip. The urethra is the tube through which urine drains from your bladder and exists your body. Hypospadias is a common and doesn't cause difficulty in caring for your infant. Surgery usually restores the normal appearance of your child's penis. With successful treatment of the hypospadias, most male can have normal urination and reproduction. So this is also a toxicological error in the baby boy and that can be eradicated by the surgery. So इस फिगर के अंदर यू कैन सी कि यूरिन जो है उसके लिए पॉइंट आउट किया गया डायग्राम के अंदर कि वो उसकी टिप के बजाय उसकी लेटरल साइड से या किसी और पॉइंट से भी वो एक उसकी ओपनिंग बन जाती है और वहाँ से जो है ना यूरिन बाहर आ रहा होता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए दैट कैन बी एड्रेस्ड। Then about the sperm count, that is abnormalities due to biological toxicology. Abnormal sperm morphology causes male infertility and it's one of the three reasons why some couples cannot conceive. Most uh, infertile men have a low sperm count, also called oligospermia. Oligospermia. Low sperm count is often associated with poor sperm motility.
A very small percentage of male infertility is due to abnormal sperm morphology, also called teratozospermia. तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो मैरिड कपल होते हैं, अगर उनको रिप्रोडक्टिव सक्सेस ना हो रही हो, तो सबसे पहले जो कोई भी डॉक्टर उनको एडवाइस करता है वो हमेशा कहता है कि सीमन टेस्ट करवा के लाएं। सीमन टेस्ट में प्राइमरीली जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या जिसने रिप्रोडक्टिव आपकी थेरेपी करनी होती है या वो केस लेना चाहता है, वो सबसे पहले ये देखना चाहता है कि क्या मेल के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है बायोलॉजिकल। ज़ाहिरी बात है, अगर स्पर्म ही वाइबल नहीं होते या उनकी काउंट का मसला है तो वो फिर उसकी ट्रीटमेंट रिलेटेड करना चाहते हैं। तो यानी जो प्राइमरी टेस्ट है प्रोडक्शन के अंदर, अब अनफॉर्चुनेटली ये स्पर्म काउंट किस वजह से होता है इसको हम आगे जाके देखेंगे, बट इसका तल्लक भी बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी की है वजह से है और मेल इसमें सफ़र हो रहा होता है। ज़ाहिर है औलाद जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी, हर कपल की ये ज़रूरत भी है और ख्वाहिश भी होती है कि उनके यहाँ बच्चे हों। तो ये एक एरर है बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी की वजह से, लेकिन इसमें कुछ इसके फिजियोलॉजिकल एरर भी होते हैं, लेकिन मेजर जो है दोज आर रिलेटेड टू द toxicology related to biology. So normal sperm have a long tail and an oval head. Abnormal sperm is characterized by having abnormal head and tail structure. The head may be too large or too small. The tail can be crooked or even doubled. These sperm abnormalities affect the sperm ability to swim and fertilize the egg. तो इस वजह से क्या होता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकेगी। इफ़ अ सीमन एनालिसिस शो abnormal sperm morphology or other sperm problem like house sperm count and poor sperm motility, your doctor will initially recommend to wait a couple to months to see if the problem resolve itself. Then, according to the World Health Organization (WHO), a semen sample is normal if 4% or more of the analyzed sperm samples has a normal shape. ये एक स्पर्म की टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल शेप दी गई है। इसका हेड होता है, नेक होती है और इसकी टेल होती है। अच्छा, there is a list of all possible sperm morphological defects. ये चार तरह के इसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीन मेजर टाइप के हैं जिनमें आगे सब डिफेक्ट्स हैं। वन इज़ हेड डिफेक्ट, इट इंक्लूड लार्ज हेड, स्मॉल हेड, डबल हेड, इलोंगेटेड हेड, वैक्यूलेटेड हेड, इर्रेगुलर हेड एंड अमॉर्फस हेड। अगर स्पर्म की जो हेड है उसके अंदर इस तरह की, यानी वो बड़ा है या ज़्यादा छोटा है, डबल हो गया है, ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके अंदर कोई वैक्यूल आ गया है, या वो डेफिनेट शेप में नहीं है या एमॉर्फस है, तो क्या है, ये जितने भी इस तरह की उसके अंदर कोई डिफेक्ट नज़र आएगा तो बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी प्रोनाउंस एज हेड डिफेक्ट, वो उसकी वायबिलिटी को मुतासर कर देता है। देन नेक डिफेक्ट, यानी उसका जो सेंट्रल पोर्शन है स्पर्म का वो बेंट हो सकता है, थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है और साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट हो सकती है इसमें। तो दोनों पोर्शन में किसी भी एक पोर्शन के अंदर ये तीनों, उसकी टेल में भी डिफेक्ट हो सकता है, लाइक कॉइल्ड हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, हेयर पिन हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, डुप्लीकेटेड हो सकती है और टर्मिनल ड्रॉपलेट हो सकती है। तीनों पोर्शन के अंदर इनमें से कोई भी एरर हो, स्पर्म विल नॉट बी वाइबल। तो ये इसके मॉर्फोलॉजिकल एरर्स हैं जिनमें से हम देखते हैं कि हमारा चूँकि सब्जेक्ट है दैट इज़ बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग इन द मेल, तो हमने इसको कोरिलेट करना है अपने टॉपिक के ऊपर कि इस प्रॉब्लम का स्पर्म की जो काउंट है सीमन के अंदर इन मेल, इन ह्यूमन मेल्स, इसकी वजह क्या टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है। सो काजेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये बेसिकली दो तरह की हैं। देयर आर टू मेन काजेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, वन इज़ congenital abnormalities and other is underlying health conditions. So if we talk about the congenital abnormalities, then in some cases
sperm problem like abnormal sperm morphology are due to a permanent condition. Congenital conditions such as a testicle abnormality present at birth can't be treated. तो ये तो अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज ही नहीं हो सकता अगर वो बर्थ के तौर पे इस तरह की कोई डिफेक्ट आ जाए. Then underlying health conditions, in most cases, abnormal sperm morphology is due to an underlying condition that, when treated, resolves the solution. Some common cases of abnormal sperm that are temporary or may be resolved with treatment include varicocele, infections, smoke, alcohol, illegal drug use, prescription medicines, candida, STDs, and toxicity of pesticides and chemicals, poor diet and lack of vitamins. So ये जो problems हैं, those are also associated with the morphology of the sperm. ये इन चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई भी, अब देखें इनमें से जो है वेरिकोसिल जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एरर. ये जो होता है इसमें ब्लड दोबारा रिवर्स हो जाता है स्क्रोटम के अंदर और वो हार्ट की तरफ नहीं जाता या पंपिंग की तरफ नहीं जाता. तो ये एक बायोलॉजिकल एरर तो नहीं है, बट इसकी वजह से भी जो स्पर्म है वो भी वाइबल नहीं रहते. फिर इसी तरह इन्फेक्शन हो जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, स्मोकिंग, अल्कोहल. हमारे इसमें से कुछ जो फ्लैग हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, दैन टॉक्सिसिटी फ्रॉम पेस्टिसाइड, ये हमें रिलेट कर रहे हैं हमारे टॉपिक की तरफ से. यानी इन 10 प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको ये फील होता है कि जितने भी फैक्टर हैं इनमें से कुछ जो है वो बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी की वजह से हैं. और हमें ये देखना है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कितनी इम्पेक्ट कर सकती है स्पर्म काउंट के ऊपर. अगर हम इनमें से क्या क्या चीज़ें लेते रहते हैं या हमारे अंदर खुद से ये चीज़ें आ सकती हैं. क्या स्पर्म काउंट अगर मेल के अंदर कम है तो उसकी वजह क्या टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है. तो येस ऑफ कोर्स इन 10 में से बहुत सारी टॉक्सिकोलॉजी के रिलेटेड आइटम हैं जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं. तो दोज आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल केसेस. ऐसे प्रॉब्लम which cause toxicity for the sperm count, deficiency of sperm count, those are called environmental cases. Sperm production or function can be affected by overexposure to the certain environmental elements include industrial chemicals, heavy metals, and overheating the testicles, as I discussed earlier. But if we talk about the industrial chemicals, if someone is extended exposure to the benzene, toluene, xylene, herbicides, pesticide, organic solvents, painting material and lead might contribute to low sperm count. ये चीज़ें जितनी भी हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार हैं. ज़ाइलिन का इस्तेमाल होता रहता है, बेंजीन का इस्तेमाल होता रहता है और इसमें हर्बिसाइड्स भी हम यूज़ करते हैं. आजकल मकई का सीज़न है और दही इलाके के लोग मकई के अंदर पहले तो वो गोडी वगैरह करते थे, बट इन दिनों में वो हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हम आजकल सैनिटाइज़र का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज़ एडवाइज टू सैनिटाइज हिज और हर हैंड मैनी टाइम्स इन अ डे. हमें कहा जाता है जी अपने हाथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पर्टिकुलरली ये जो आजकल दुकानों से मिल रहे हैं उनसे क्या करें जी कि हाथ बार बार वॉश करें कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए. तो इसके अलावा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो हम लोग वैसे डेली लाइफ में बेशुमार यूज़ कर रहे होते हैं. ये एथनॉल, फिनॉल, डाइक्लोरोमीथेन, एनहेक्सेन, अल्कोहल, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकते हैं. टेन पेंटिंग मटेरियल है, लेड है, अगर इसको यहाँ आप एक्सपोज ज़्यादा होते हैं तो देयर इज़ चांस कि ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स आपके अंदर इनकॉर्पोरेट होके ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं. देन हैवी मेटल एक्सपोजर टू द लेड और अदर हैवी मेटल्स आल्सो कैन काज इनफर्टिलिटी. हैवी मेटल्स की एक लिस्ट है, जिस तरह कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, मैग्नीज है, एंटीमनी है, जिंक है, क्रोमियम है, तो नियॉन है. ये एक पूरी लिस्ट है हैवी मेटल्स की.
those heavy metals are present in different stuff, present in our houses, in our offices, in our vehicles, and we may expose directly to the earth strata. जब हम ज़मीन के यहाँ भी एक्सपोज होते हैं तो जियोलॉजिकली सम मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ. वाटर के अंदर हो सकती हैं. इफ़ यू आर एक्सपोज टू द कंटेमिनेटेड रिवराइन और स्ट्रीम वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, आप बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए जो पानी यूज़ करते हैं वहाँ पर मेटल हैं. इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर तो हैवी मेटल भी आपके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं. देन रेडिएशन ऑफ एक्स रेज. ज़ाहिर बात है मेडिकेशन में एक्सरे एक ज़रूरी चीज़ है. ड्यू टू एक्सीडेंट्स या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कोई बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो एक्सरे रिक्वायरमेंट बन जाती है. एक्सरे इनको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है. तो जब एक्सरेज एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर टू द रेडिएशन कैन रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन. तो ये एक्सरे भी स्पर्म प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है. इट कैन टेक सेवरल ईयर्स फॉर स्पर्म प्रोडक्शन टू रिटर्न टू नॉर्मल. तो उसमें कई साल भी लग सकते हैं दोबारा रिपेयर होने में, ठीक होने में. विद हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन स्पर्म प्रोडक्शन कैन बी परमानेंटली रिड्यूस्ड. इसमें ख़तरनाक बात यह है कि एक्सरेज के हाँ अगर हाई डोज यानी आपने ज़्यादा एक्सपोज हुए या उसकी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट में आप ज़्यादा दे रहे हैं तो आप परमानेंटली इस प्रोडक्शन से महरूम हो सकते हैं. तो ये बहुत ख़तरनाक रेडिएशन है एक्सरेज. इसको यूजुअली नॉर्मल लिया जाता है. इवन दो के जो रेडियोग्राफर्स होते हैं उन्होंने हाई मेटल्स वेस्ट पहनी होती हैं, बहुत थिक हाई थिकनेस वाली मेटल्स वेस्ट पहनी होती हैं कि एक्सरेज उनकी बॉडी में या जिसम में किसी हिस्से में भी वो इनकॉर्पोरेट ना कर सकें. तो ना सिर्फ जिसका एक्सरे किया जाए बल्कि एक्सरे करने वाला जो रेडियोग्राफर होता है वो भी वल्नरेबल हो सकता है. उस कमरे के अंदर किसी तीसरे शख्स का होना इंतहाई मोहलक हो सकता है. उसको भी ये रेडिएशन बैक बाउंस होकर लग सकती है, गुजर सकते हैं उसकी बॉडी से. तो याद रखें कि जब आप किसी पेशेंट के साथ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ एक्सरेज के लिए जाएं, इफ़ इट इज़ वेरी नेसेसरी, सो प्राइमरीली वी हैव टू अवॉइड the exposure of x-rays, but if it is necessary, so make it sure that nobody other from the patient may visit the x-ray room. x-ray room के अंदर सिर्फ पेशेंट को ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा गया है वो तो खैर सगाली के तौर पे साथ गया होता है, उसमें एक इखलाकी मॉरल सपोर्ट के लिए गया होता है, बट वहाँ वो भी मुतासर हो सकता है. तो वी शुड केयर ऑफ इट. Then overheating the testicles. We have discussed this before, that elevated temperature impairs sperm production and functions, although studies are limited and are inclusive. ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट हमने जो कुछ स्टैट्स लास्ट स्लाइड में शेयर किए थे उसमें ये कंक्लूड किया था कि टेम्परेचर का तल्लक भी होता है. थर्मल टॉक्सिसिटीज़ को कह सकते हैं. दैन फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सोनास और हॉट ट्यूब्स माइट टेम्परेरीली इम्पेयर स्पर्म काउंट. तो इससे ये होता है, एक्सरेज में तो परमानेंट एक प्रॉब्लम भी आ सकता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में, लेकिन सोना बाथ या हार्ट ट्यूब्स में ये है कि ये टेम्परेरीली एक इम्पेयरमेंट आ सकता है और होता भी है. इसमें परमानेंट का इतना नहीं है, लेकिन बट टेम्परेरीली ये प्रॉब्लम आ सकता है. सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, wearing tight cloth or working on a laptop computer for long stretches of time also might increase the temperature in your scrotum and slightly reduce sperm production. तो इससे ये देखा आपने कि these are the environmental cases कि इनकी वजह से क्या हो रहा है, स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है. Then health, lifestyle and other factors can also be damaged or you can say can affect the sperm count. Like other
cases of low sperm count include drug use, alcohol use, occupations, tobacco smoking, emotional stress, depression, weight, sperm testing issues. इनको वन बाई वन अगर देखें तो देखें ड्रग यूज़. ड्रग्स एक कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है, इसमें बेशुमार वैरायटी आ सकती है. उनको हम कलेक्टिवली ड्रग ही कहते हैं. दोज कैन बी लीथल. सो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स taken to stimulate muscle strength and growth can cause the testicles to shrink and sperm production to decrease. ये जो एथलीट होते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अक्सर खा रहे होते हैं तो उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है. यूज़ ऑफ कोकेन और marijuana might reduce the number and quantity of sperm. तो इससे ही कंक्लूड होता है कि ये जो डिफरेंट स्टीरॉइड्स ले लेते हैं या marijuana या और इस तरह की मेडिसिन जो ली जाती हैं ये मेल्स के अंदर सॉरी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं. देन यूज़ ऑफ अल्कोहल यानी शराब नोशी जो है. ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड कॉज डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन. तो बेसिकली क्या होता है कि जब अल्कोहल पी जाती है वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी क्वांटिटी को लोअर करता है और उससे क्या होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड दैट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द बॉडी. तो इसका मतलब ये हुआ कि शराब नोशी का तो डायरेक्ट तल्लक है. तो वो लोग जिनके हाँ स्पर्म काउंट कम है उनको ये चेक करने की ज़रूरत होती है कि कहीं वो एडिक्टेड तो नहीं है टुवर्ड्स कोल. अगर वो अल्कोहल्स एडिक्टेड है तो वो इस चीज़ को देखें. देन ऑक्यूपेशन. Certain occupations might be linked with a risk of infertility, including welding or those associated with prolonged sitting, such as truck driver. However, the data to support these association is inconsistent. इसमें कोई बहुत ज़्यादा जमीयत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है इस बात के अंदर, बट कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो बैठने वाले लोग हैं और एक प्रोफेशन है लाइक वेल्डर्स. वेल्डर्स बेसिकली जब मेटल्स को अलमनाई अमल गम उनकी कर रहे होते हैं, आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आ सकता है कि बहुत सारी मेटल एरोसोल्स की फॉर्म में वहाँ से एमिट होकर इनके नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, माउथ ट्रैक के ज़रिए, जीआई ट्रैक के ज़रिए उनकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं. और इसके अलावा जो ज़्यादा सिटिंग वाले लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टोबैको स्मोकिंग तो मेल और फीमेल दोनों करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन who smoke might have a lower sperm count than those who don't smoke. तो जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनका जब चेकअप किया गया तो पता चला उनमें लोअर स्पर्म काउंट है. तो इसका भी मतलब है कि वो डायरेक्टली इसकी एसोसिएशन है. ये स्टडीज़ के बाद चेक किए जाने के बाद ये बात की गई. दैन इमोशनल स्ट्रेसेस, जो गुस्से में बहुत लोग रहते हैं. सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग स्ट्रेस about fertility might interfere with hormones needed to produce sperm. अच्छा, इसमें ना जो कपल्स होते हैं there is need of counseling. शादी के बाद अगर उनकी ब्रीडिंग सक्सेस नहीं है, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो मेल फीमेल दोनों को ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बजाय एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहराने के उसमें इस फैक्टर को कम किया जाए, दैट इज़ इमोशनल स्ट्रेस. अगर प्रॉब्लम है भी दैट विल फर्दर एक्सलरेट. अगर मेल के अंदर कोई इस तरह का इशू है भी तो वो फर्दर एक्सलरेट होगा, वो ठीक नहीं होगा एक दूसरे की बातें सुनने की वजह से और तानाबाजी की वजह से. दैट इज़ इमोशनल स्ट्रेस. इमोशनल स्ट्रेस बातों की वजह से जन्म लेती है और जब वो बंदा सुनेगा कि उसके अंदर कोई एरर है तो वो फर्दर जो है ना डिप्रेशन में चला जाएगा और वो उसकी जो है ना फर्टिलिटी में इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा. वो फर्दर उसमें लोअरनेस आती जाएगी. तो ये इस वजह से भी हो सकता है. देन डिप्रेशन है. बीइंग डिप्रेस्ड
may negative affect sperm concentration. डिप्रेशन तो वैसे भी है कि आपको अगर शुगर नहीं है, अगर ये सोचना शुरू कर दें मुझे शुगर हो गया तो शुगर हो भी जाएगा। बीपी का आप सोचते रहें तो बीपी आपको होना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन जो होता है ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से होते हैं। डिप्रेशन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन किसी खौफ की वजह से भी हो सकता है। तो ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि कोई भी जो बीमारी है, लेट्स से कि किसी बंदे को शुगर है, वो अगर जाके 50 साल बाद होना था, तो इफ़ यू आर इन अ डिप्रेशन आपको 35 साल में शुगर शुरू हो जाएगा। अगर आपको पास डिप्रेशन है आपको, तो आप इसकी भी कई अक़साम है, बाईपोलर भी होता है, सिंगल पोलर भी होता है। तो डिप्रेशन बस वही होता है कि लोग बहुत कूल काम और खामोश रहते हैं, दिस इज़ आल्सो टाइप ऑफ डिप्रेशन, यानी वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन वाला बंदा को बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, बस वो उसका रिएक्शन बड़ा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा वो इस तरह का भी होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाने वाले लोग होते हैं, दैट इज़ आल्सो डिप्रेशन। देन इफ़ वी टॉक अबाउट वेट, then obesity can impair fertility in several ways, including directly impacting sperm and by causing hormone changes in the reduced male fertility. तो weight is also associated with जी अभी क्लास हो रही है, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बाद चले जाए। Then sperm testing issues. So lower than normal sperm counts can result from testing a sperm sample that was taken too soon after you last ejaculation, was taken too soon after an illness or stressness event, or didn't contain all of the semen you ejaculated because some was spilled during the collection. For this reason, results are generally based on the several samples taken over the period of time. अच्छा, ये अगर स्पर्म या सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना भी हो तो इसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। उसमें सम टाइम वहाँ लोकल एजैकुलेशन के दौरान जो है वो कुछ एरर आ जाते हैं और वो रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कि इसमें ये मसला है, वो मसला है, तो उसमें क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है। The most common reproductive cancers, if we talk about cancer in the reproductive system of male, ये तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव में भी हो सकता है कैंसर ड्यू टू टॉक्सिसिटी, बट दोनों में हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, द मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव कैंसर्स इन द वुमेन और सर्विकल कैंसर। ये सर्विकल कैंसर जो होता है वो ड्यू टू टॉक्सिसिटी हो सकता है। कैंसर ऑफ द सर्विक्स, द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस दैट एक्सटेंड टू द विजाइना। देन ओवरियन कैंसर, कैंसर इज द इन द ओवरीज, द टू ऑर्गन दैट मेक फीमेल हार्मोन्स एंड प्रोड्यूस द वुमेन्स एग्स। तो ये भी कैंसर्स भी इन चीज़ों की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, लाइक अल्कोहल, हैवी मेटल्स, जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो कैंसर का मौजब बन सकते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मेल, देन रिप्रोडक्टिव कैंसर स्टार्ट इन द ऑर्गन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। फॉर मेन दीज इंक्लूड द penis, testicles and the prostate gland. Each type of male reproductive cancer has different symptoms, so it is important to see a health care provide if you have symptoms. तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें बेसिकली कैंसर क्या चीज़ है? कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड ऑफ अनवांटेड सेल्स। ऐसे सेल्स जो बॉडी के अंदर नहीं चाहिए उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो एक ट्यूमर या एक चैन की सूरत में किसी नाली को ब्लॉक कर देते हैं, उसके अंदर सप्लाई बंद कर देते हैं। ये आउटसाइड द वैन या वैन के बाहर भी किसी जगह पर भी हो सकता है। तो ये यूरिथ्रा की जो चैनल है इसके अंदर हो सकता है, ओवरीज के अंदर हो सकती है, किसी भी जगह। तो अगर ज़रा सी भी कोई रिपोर्ट हो तो इसकी प्राइमरी स्टेज पर ही इसका रिमूवल हो सकता है। इसकी थेरेपी है वो ऑन्कोलॉजी सेंटर में जाके या फ़ौरन से ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा देनी चाहिए। इसमें ज़रा भी देखें, ये जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम होता है कि हम बीमारी को छुपाते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम जो एक्सलरेट करता रहता है।
सो वी हैव टू एड्रेस, हमें जहाँ पर प्रॉब्लम हो फ़ौरन से उसको रिलेटेड डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए ताकि वो जो है आपको मज़ीद सफ़र ना करवाए। देन एंडोक्राइन डिसरप्शन, इसमें एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, और ये हम पीछे पढ़ रहे थे, उसमें हमारा ये एक हेडिंग थी कि हैवी मेटल्स की वजह से बॉडी के अंदर इंसानों के अंदर एंडोक्राइन डिसरप्शन होता है। एंडोक्राइन डिसरप्शन की वजह क्या होती है? इसके सेवरल मूड हैं, मोड्स ऑफ डिसरप्शन। मिमिक हो सकता है, ब्लॉकिंग हो सकती है, मेटाबोलाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ सकता है। यू नो सम केमिकल कंपाउंड्स आर सिमिलर विद ईच अदर। जिस तरह अगर कोई एंजाइम किसी एंजाइम के साथ अटैच होकर कोई केमिकल एक्शन या रिएक्शन एक्सेलरेट करता है या ब्लॉक करता है, तो अगर कोई सिमिलर कोई एंजाइम से मिलता जुलता कोई और केमिकल वहाँ बाइंड हो जाए, तो क्या होता है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह इंसान के जिस्म में हीमोग्लोबिन है, और इसके ऊपर जो हीम ग्रुप है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि दैट कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। तो हीम ग्रुप अगर उसको कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो वो उसको भी उठा लेता है, अपने साथ बाउंड कर लेता है मिमिक होने की वजह से। तो बॉडी के अंदर सम टाइम कुछ हमारी बायोलॉजी को वो वाले मालिक्यूल भी जिस तरह बाइसिफिनोल ए है, ये बहुत सारे कंपाउंड से मिमिक करता है। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो ये ब्लॉकेज का बायस बनता है। ग्लूटामाइड है, ये मेटाबॉलिज्म को हमारे को तेज़ या कम कर देता है। डेक्सामेथासोन है, तो ये इस तरह के मिमिक होना, ये ब्लॉकिंग करना, मेटाबॉलिज्म में इंटरप्ट करना, दैट इज़ एंडोक्राइन डिसरप्शंस। और ये डिफरेंट जो हम टॉक्सिकेंट्स जीनोबायोटिक्स इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोक्राइन डिसरप्शन इन मेल एंड फीमेल। देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द हार्मोन मिमिक। तो इसमें क्या होता है, सिमिलरिटी एफिनिटी आ जाती है, एक्टिवेट पाथवे भी सिमिलर होता है। इसमें होता है कि रेगुलेशन नहीं होती, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाए तो दैट इज़ बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी। अब क्या हुआ कि ये तो वो जो हीम ग्रुप है उसके ऊपर बाइंडिंग साइट मिमिक होने की वजह से वो कंपाउंड अटैच हो गया, और वहाँ पर रिएक्शन जो हमें रिक्वायर्ड था ऑक्सीजन कैरिंग का वो नहीं हुआ, कोई और रिएक्शन हो गया। देन चेंजेस इन हार्मोन लेवल, फिर इस तरह से हमारे यहाँ जो दीगर, इफ़ यू टॉक अबाउट द हार्मोन मिमिक्स, तो हार्मोन पे भी कोई और चीज़ सिमिलर अटैच हो जाती है जो कि प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन या हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, और उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आना शुरू हो जाता है। देन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, रिसेप्टर्स बाइंड टू द रिसेप्टर, कोई ऐसा ही मिमिक कंपाउंड या कोई कार्सिनोजेनिक एलिमेंट अगर रिसेप्टर पे चिमट जाए या कंबाइन हो जाए, कंपीट विद हार्मोन, ब्लॉक फीडबैक चेंजेस इन हार्मोन लेवल, उससे ये प्रॉब्लम आ सकते हैं कि हार्मोन के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म मुतासर हो सकता है, और इसमें कोई भी इस तरह का एरर जो है रिलेटेड वो पॉसिबल है। लाइक अप रेगुलेशन ऑफ हेपेटिक एंड रीनल क्लियरेंस हो सकती है डेक्सामेथासोन्स की वजह से, एंड टेस्टोस्टेरोन जिसको बीटा-6 हाइड्रो हाइड्रोसिस्टेरोन या पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर पीबीडीज जिनको कहते हैं, इंक्रीज्ड हेपेटिक एंजाइम एक्टिविटी। तो पीबीडीज जो हैं वो हेपेटिक एंजाइम एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और डेक्सामेथासोन जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो कंपाउंड हैं ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को इरेगुलर करते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीटोमाइसिन, दैट इज़ इंजेक्शन being used for the cattle for early अटेनमेंट ऑफ मिल्क। हम दूध को जल्दी हासिल करने के लिए, या ऐसी भैंसें जिनके बेबीज़ या वो जो कॉफ होते हैं, वो अगर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो उनका दूध निकालने के लिए ये फार्मर जो ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। अच्छा, वो जो हार्मोन होते हैं उसके अंदर, दैट इज़ हार्मोन, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फूड चेन में, योगर्ट प्रोडक्ट्स
जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, योगर्ट है, मिल्क है, अगर उस भैंस का या ऐसी तमाम डेयरीज़ का जहाँ पर ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है, वो दूध हम घरों में ले आते हैं और बच्चे पीना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो अपने बच्चे हैं वो उनके अंदर जो हार्मोन्स इरेगुलरिटी होना शुरू हो जाती है, अर्ली अडल्टहुडनेस आना शुरू हो जाएगी उनके अंदर। लेट्स से जो फीमेल बच्चियाँ जो हैं, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि जो बच्चियाँ हैं अगर वो एक्सीटोसिन इंजेक्शंस वाली या उस रेजिड्यूस हार्मोन वाली डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हों, तो उनके अंदर अर्ली बलूगत आ जाती है। लेट्स से कि वो बहुत अर्ली एज में 8-9-10 साल की एज से ही उनमें चेंजेस बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हार्मोन्स का ये इम्पैक्ट होता है कि वो एक टॉक्सिसिटी या इरेगुलेशन बॉडी के अंदर ले जाते हैं, नॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं होता। तो हार्मोन मेटाबॉलिज्म जो है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सर्टेन टॉक्सिकेंट्स एंड मेडिसिन्स। ये मेडिसिन हालांकि हम बेहतरी के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, वो भैंस को तो इंजेक्शन हम बेहतरी के लिए लगाते हैं कि हमें तकलीफ़ ना हो और हम लोग अपनी इसकी जो दूध की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम ईज़ करते हैं, बट उसके आफ्टर इफेक्ट देखें कि दूध को जब बॉयल किया जाता है और दूध के अंदर से तो किसी हद तक ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो ऑक्सीटोसिन डी नेचर हो जाता है, बट जो योगर्ट प्रोडक्ट है उसको तो आप देखें फ्रीज़ करते हैं, वो जो ऑक्सीटोसिन है दही के अंदर वो बड़ा बेहतरीन फॉर्म में अपनी असल हालत में सेव रहता है और उस लो टेम्परेचर पे ही खा लिया जाता है। और बच्चियों के लिए याद रखें कि ऐसी भैंसों का और ऐसी डेयरीज़ का दूध बहुत उनके लिए में हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ये तो एक एग्जांपल है, बट ये मैंने आपको बताया है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल जो है ये प्रॉब्लम करते हैं, डेक्सामेथनोज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये सारे सिमिलर प्रॉब्लम कर सकते हैं। एंड नाउ अबाउट एलिगेटर्स, ये एक टॉवर केमिकल कंपनी है, ये इसका स्पिल हुआ 1980 में और इससे क्या हुआ कि एलिगेटर्स की एक बड़ी तादाद की डेथ हो गई। देन डिक्रीज इन क्लच वाइबिलिटी, तो इस तरह से एक बड़ी डिक्रीज़ है इनकी क्लच वाइबिलिटी में और जुवेनाइल मोर्टेलिटी हुई, उनके इवन बच्चे भी मारे गए छोटे छोटे जो उनके थे। और आफ्टर 20 ईयर डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन, स्मॉल पोल साइज, अल्टर्ड प्रोडक्टिव ट्रैक, तो ये इनके अंदर भी लेक अपोपोका के अंदर ये प्रॉब्लम एनिमल्स के अंदर भी नोट किया गया था, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, ये इस तरह से एलिगेटर्स के अंदर भी प्रॉब्लम आया था। एंड नाउ बैक टू द मेल इनफर्टिलिटी, सो इट डिक्लाइन इन मेल फर्टिलिटी, 101 स्टडीज़ इन 28 कंट्रीज़, तकरीबन 28 ममालिक में सो फार 101 रिसर्च की गई हैं एंड 1113 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर इन 1938। तो ये स्टैटिस्टिक्स कुछ आपके पास स्टैट्स आपके सामने रखे गए हैं, इनको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारे पास क्वान्टिफिकेशन आई या डिफरेंट स्टडीज़ में मौजूद हैं। और ये बताया गया कि 1.5% पर ईयर डिक्लाइन इन द यूएस, के डिक्लाइन आ रहा था यूएस के अंदर 1.5%, तो लेकिन उनको अभी इस बात की मज़ीद वजह नहीं पता चली कि किस वजह से डिक्लाइन आ रहा है। बहरहाल ओवरऑल स्पर्म जो थे उनकी तादाद के अंदर देखा गया कि कमी आ रही थी। देन फेथलेट एस्टर्स, ये भी एक कंपाउंड है केमिकल दैट इज़ एंटी एंड्रोजन कंपाउंड, मेक प्लास्टिक फ्लेक्सिबल। हम बहुत सारे खिलौने टॉयज़ जो घरों में बच्चों के होते हैं या प्लास्टिक आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स दोज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, उनको लिटिल बिट फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम पैथलेट एस्टर्स का यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये मेडिसिन इक्विपमेंट में भी वन यूज़ किया जाता है और फार्मास्यूटिकल उसमें इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ हो सकता है। ये क्या करता है, मेल फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जर्म सेल्स, डिक्रीज स्पर्म काउंट। देखें ये भी स्पर्म काउंट पे इम्पेक्ट करता है, जर्म सेल्स को भी इम्पेक्ट करता है
और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को भी मुतासर करता है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी. Then primary support for germ cells, paracrine, anti-mullican hormones, follicle stimulating hormone, structural tight junctions, immune protection. तो ये एक इसकी फिजियोलॉजिकल डायग्राम दी थी कि ताकि आप इसको जर्म सेल की समझ सकें कि जर्म सेल कौन से सेल होते हैं. इनके अंदर जो है ये बेसिकली ये आपने देखा लिखा हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड जर्म सेल. तो जो पैथोलेट्स ईस्टर्स होते हैं जर्म सेल, ये जो सर्टोली सेल हो गए, ये सारे हो गए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जर्म सेल्स का, इसको ये डैमेज कर सकते हैं. देन इन यूटीरो यानी इन वोम, डिक्रीज एंटी मुलिराइन हार्मोन, जर्म सेल डेथ, देन रिट्रैक्टेड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, प्री pubertal, disruption of tight junction port, vitamins and connections 43. Then what is the mode of action? Suggest anti-androgen, testosterone change in rat. तो ये भी वही है कि मुख्तलिफ रैट्स के ऊपर भी स्टडीज़ की गई, चेक किया गया टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर, उसके अंदर भी चेक किया गया कि इसका बिल्कुल ये उसके अंदर एक्शन था, उसके अंदर चेंजेस थी, डिस्ट्रप्शन ऑफ एंड्रोजन डिपेंडेंट टिश्यू के ऊपर इसका इफेक्ट था. दैन फ्लूटामाइड को चेक किया गया, नो एंड्रोजन receptor block and compared to the pathlate disruption. Thank you very much. Now session is open for questions. If you have any question, you are welcome to ask.